Once again, welcome to all of you, class 12 and especially for 12th. Today I am going to solve exercise 3.3 of matrices chapter. Most of the question I have already solved and sent it to PDF. I think receive the PDF and check the PDF all of you. So if any question, doubt and problems created in this question, so help the PDF and check the PDF and solve the question. But now today I am going to solve few questions. The calculation part is too long. From question number 9, find half of A plus A transpose and half of A minus A transpose when A is equal to given matrices. Okay. So addition of matrices, solve yourself, and differences of matrices part portion solve on the whiteboard right now. Children, question number 9. Solution. The given matrix is A is equal to matrices box 0 minus A minus B, A 0 minus C, B C 0. This is the A matrices is given in this question. Find the half of A minus A transpose. So if A is equal to given, then transpose of A matrices is equal to, think what is the meaning of transpose of A matrices? Like in given matrices, all the elements in the column form converted to rows form. यानी जो भी एलिमेंट आपके कॉलम में गिवन होंगे इनिशियल मैट्रिसेस में, जब उसका ट्रांसपोज करना होगा तो कॉलम मैट्रिसेस कन्वर्टेड टू इन द रोज फॉर्म. सो हियर 0 minus A minus B converted to horizontal. So 0 minus A minus B. Second column A 0 minus C, A 0 minus C. Third column B C 0, B C 0. Okay, so columns element converted to horizontals element is called transpose matrices. तो ये वैल्यूज कन्वर्ट हो गई, A की वैल्यू गिवन हो गई, A डैश की वैल्यू गिवन हो गई. फाइंड क्या करना है आपको? हाफ ऑफ A माइनस A डैश. So write that 1 upon 2 A minus A dash is equal to, first of all हाफ करने के लिए A minus A dash आपको निकालना पड़ेगा. ओके, ये आपको फाइंड करना है. नाउ first of all A minus A dash. So here A matrices 0 minus A minus B, A 0 minus C, B C 0 minus transpose of A dash is 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0 is equal to, okay, directly subtract 0 minus 0 0 minus A minus A minus 2A minus B minus B minus 2B, A minus minus plus A plus A
2a 0 minus 0 0 minus c minus 2c b minus minus plus bb 2b c minus minus plus c 2c and 0 minus 0. This is the a minus a dash matrices, value of a minus a dash matrices. And now half of a minus a dash is equal to, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए, हाफ ऑफ लिखने से अच्छा इसमें 1/2 से डिवाइड करना है, तो 0 1/2 मीन्स 0 minus 2a/2 minus a minus 2b/2 minus b 2a/2 only a 0/2 means 0 minus 2c/2 minus c and 2b/2 only b 2c/2 only c and 0/2 is 0. This is the diagonal elements is 0. So diagonal elements is 0 की कंडीशन में क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हो जाती है. बट यहाँ पर फाइनली हमें सिर्फ क्या करना था, फाइंड करना था. तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, द मैट्रिसेस इज 0 minus a minus b a 0 minus c b c 0. ये जो हमने डायगोनल अंडरलाइन किया सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू मैट्रिसेस क्या होती है. ओके, सो दिस इज सॉल्व द क्वेश्चन. And any doubts, any problem? This is the basic properties. So note down this question. Okay. And first part 1/2 a plus a dash. Solve yourself because in this question value of a and a dash is value already solved. Okay. In question number 10. In this question calculation part so long, but solve this question on the board, so take the time children. Question number 10, express the following matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrices. यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की वैल्यू में सबसे पहले सिमेट्रिक की कंडीशंस को आप सॉल्व करें या उसको शो करें, फिर आफ्टर दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को सॉल्व करें. तो एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज एक्सप्रेस टू ओरिजिनल मैट्रिसेस, यानी जो मैट्रिसेस दिया हुआ है. तो हम इस मैट्रिसेस की हेल्प से सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, फिर इसी मैट्रिसेस से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे, फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स का सम निकालेंगे. वो सम हमारे पास एज यूजुअल 3 5 1 -1 मैट्रिसेस के फॉर्म में आना चाहिए. तो ये हमारे लिए एक तरह से कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है और ये क्वेश्चन की सॉल्विंग का सही प्रोसेस होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट, this is rough time. And after this question, in this exercise only 2 questions are left. Okay. Question number 10, first part solution. Okay, so let the given matrices, the given matrix is 3 5 1 -1, 3 5 1 -1. So let a is equal to 3 1 5 -1. Then ट्रांसपोज ऑफ a, क्योंकि सिमेट्रिक निकालने के लिए ट्रांसपोज की हेल्प लेनी पड़ेगी. देन ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्टली सेम कॉलम एलिमेंट कन्वर्टेड टू रो फॉर्म. सो 3 1 5
1. This is the transpose of A matrices given. And now सिमेट्रिक निकालने के लिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने, A plus A dash is equal to here A 3 1 5 minus 1 plus A dash 3 5 1 minus 1 is equal to, is the addition of matrices properties. अप्लाई कर दिए, 3 plus 3 6 1 plus 5 6 5 plus 1 6 minus 1 plus minus 1 I think 2 6 minus 2. And now जो कंडीशन निकालना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स. तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम P यूज कर लेते हैं, कैपिटल P लेट कर लेते हैं, एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हम Q लेट कर लेते हैं. सो ये आपकी मेन कंडीशन हो गई A plus A dash की. लेट P is equal to 1/2 the given value of A plus A dash. सो कैसे निकलेगा? A plus A dash की वैल्यू थी, उसका हाफ करना है, डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं. 6/2 3 अगेन 6/2 3 6/2 3 minus 2/2 minus 2/2 minus 1. ओके, 3 minus 1 का फॉर्म आ गया, ये वैल्यू ऑफ P आई है, इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज P की वैल्यू होगी. ठीक है, अगेन P डैश P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज की वैल्यूज में क्या आ जाएगा आपके पास? 3 minus 1 3 minus 1 का फॉर्म भी आपको यहाँ मिल गया ट्रांसपोज ऑफ P में. अब इसको कंपेयर करते हैं किससे? 3 minus 1 3 minus 1 वैल्यू ऑफ P के ही इक्वल आई है, तो ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P. कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि जो आपके पास P के एलिमेंट्स थे वो ट्रांसपोज P के एलिमेंट्स के इक्वल आ गए. ओके, तो इस कंडीशन पे क्या हो गया? दिस इज thus P is equal to 1/2 A plus A dash is a symmetric matrices. ये प्रॉपर्टीज हो गई. एंड अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालने के लिए अब आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो हियर लेट A is given, A and A dash is given. So now A minus A dash, A minus A dash. So here A 3 5 1 minus 1 minus A dash 3 5 1 minus 1 is equal to 3 minus 3 is 0, 1 minus 5 is minus 4, 5 minus 1 4 minus 1 minus plus 0, 0 4 minus 4 0. गुड. दिस इज, अब इसको सपोज कर लीजिए लेट, क्योंकि हमने यहाँ P के फॉर्म को किया था जब A plus A dash आया था तो हमने P के फॉर्म में किया था. A minus A dash है तो हमने सपोज कर लिया Q is equal to half of A minus A dash, differences of given matrices and transpose of matrices. तो डायरेक्टली A minus A dash का half 0/2 means 0, minus 4/2 means minus 2, 4/2 means 2 and 0/2 means 0. तो ये आपकी क्यूज की वैल्यूज आ गई. इस क्यूज की वैल्यूज में आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैच निकालना है, इज इक्वल टू, इसमें हम
माइनस कॉमन ले लें, जैसे माइनस कर लें जीरो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, और +2 कन्वर्ट हो जाएगा -2 में, 0 एज इट इज हो जाएगा। 0 -2 2 0, 0 -2 2 0। तो q की वैल्यू देखिए क्या आई थी, 0 2 -2 0, q 0 -2 2 0, and now q dash, wait just a minute, इसको सेव करिए। डायरेक्टली हम यहाँ पर q डैश निकालते हैं, q डैश ट्रांसपोज ऑफ q डैश इज इक्वल टू, इसका q डैश बन जाएगा आपके पास डायरेक्टली 0 -2 2 0। ओके, अब ये वैल्यू q से सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो इस q सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले गए, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे माइनस करेंगे 0 -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, 2 -2 0 2। ध्यान से देखिए, जो q की वैल्यूज आई थी, जो q के मैट्रिसेस था वो q डैश के माइनस के रेस्पेक्ट में आ रहा है, इज इक्वल टू -q। कंडीशन अप्लाई हो गई, q डैश q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -q। तो इस कंडीशन से ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रही है, thus q is equal to 1/2 a minus a dash is a skew symmetric matrix। ओके, ये मेन कंडीशन सॉल्व हुई। मेन कंडीशन इज P is belonging to symmetric matrices and Q is belonging to skew symmetric matrices, and question says express the following matrices, the sum of symmetric and skew symmetrics, the sum of symmetrics and skew symmetrics। So representing A matrices, sum of skew and skew symmetric matrices। Representing of A matrix as sum of P and Q। तो sum of P and Q means P plus Q is equal to values of P 3 3 3 minus 1, values of P 3 3 3 minus 1 plus values of Q means 0 2 minus 2 0। ओके, सो दिस इज, अब इसका सम कर देंगे हम लोग। जैसे सम करेंगे 3 0 3 3 2 5 3 minus 2 1 minus 1 3 minus 2 minus 1 minus 1 0 minus 1। दिस इज मैट्रिसेस ऑफ A। ठीक, तो आपको क्या करना था, जो मैट्रिसेस गिवन था उसको आपको सेंटीग्रेट करना था P plus Q। हियर P इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कंडीशन यही एक्सप्रेस करना था जिसमें आपने एक्सप्रेस किया कि P और Q की वैल्यूज को निकाला सॉल्व, इन दोनों को अगर ऐड किया तो आंसर चेकिंग आपकी यहाँ पर हो गई। ओके, सो दिस इज आंसर, दिस इज द एक्सप्रेसिंग फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, एनसीईआरटी में आंसर में आपके पास इस फॉर्मेट में लिखा होगा आंसर, डायरेक्टली इसका एक्सप्रेस फॉर्म सिर्फ आपको इतना सा लिख के दे दिया होगा, बट आप इसको वेरीफाई यहीं पर कर लिया करिए। ठीक, तो सेम दिस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2nd, 3rd and 4th पार्ट सॉल्व एट योर होम। ओके, माइंड में सेट कर रखिए, कैलकुलेशन पार्ट को क्या रखना है कि हमको अपने A मैट्रिसेस का सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उन दोनों की कंडीशंस को हमको ऐड करना है।
जब दोनों की कंडीशन को ऐड करेंगे तो हमारा जो मैट्रिसेस बॉक्स बनेगा वो दो कंपोनेंट में बनेगा, दो कंपोनेंट में बनेगा। उन दोनों कंपोनेंट का सम हमारे पास गिवन ओरिजिनल मैट्रिसेस के इक्वल होना चाहिए। ओके, दिस इज द प्रूविंग ऑफ this question and cross checking of this question. And after that, question number 11 12 as usual, apply the properties. Otherwise in the next class solve both question and further 3.4 exercise, I think last exercise of this chapter. Okay, so again I hope and I request of all the 12th student attempt the question and solve the question at your home. Thank you so much.